تو anyway, آئیے خدا ان کی حضوری میں جھکتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں سے چند ایک باتیں دیکھتے ہیں. آج اپنی نصیحت کے لیے، برکتوں کے لیے تیری شکر خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا ان پیارا آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد ہو. تو جو زندگی کا مالک ہے، تو جو خداوند ہے، تو جو زندہ ہے خداوند، تو جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیری تعریف ہو کہ تو نے ہمیں آج کا دن دکھایا. خداوند بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کا دن دیکھ نہ پائے، مگر خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تجھ میں سو گئے یا کسی بھی وجہ سے خداوند آج کا دن نہیں دیکھ پائے، خداوند جو تجھ میں سو گئے ان سے ہم جلد ملاقات کریں گے، جلد ملنے والے ہیں خداوند یسوع. اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج تیرے اس جی اٹھنے کے دن کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو تیرے جی اٹھنے کی قوت، طاقت اور تیری خداوند تیرا وہ مسا جو جی اٹھنے کا ہے، پاک روح کا مسا، زندہ کرنے والے روح کا مسا، خداوند زندگی کے روح کا مسا، ہم سب آج اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے کر جائیں خداوند یسوع. اور یہاں پر بھی سیلیبریٹ کریں کہ کوئی چیز بھی آج خداوند اگر مردہ ہے، اگر آج کوئی بھی ہماری زندگی کا ایریا، ہماری زندگی کی کوئی بھی بات اگر مردہ ہے، کوئی ڈیڈ ہے، تو آج وہ خداوند تیرے خداوند جی اٹھنے کے مسا کے سبب سے، پاور آف ریزریکشن، انوائنٹنگ کی سبب سے آج وہ سب ایریا کی خداوند ہماری زندگی کے ایریاز سارے ریزریکٹ ہو جائیں، وہ جی اٹھیں، وہ قبریں کھل جائیں، وہ زندگی خداوند سب کے اندر آ جائے. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، آمین، ہاللویا، پریز گاڈ. عزیز بہنوں بھائیو، آئیے خداوند کے کلام میں ہم چلتے ہیں. پہلا کرنتھیوں، فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 1، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 اور 19 آیت کو ہم پڑھیں گے. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 1 اور اس کی 18 اور 19 آیت آپ کے پاس، سب کے پاس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سب اس کو پڑھیں ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ سب اس کو میرے ساتھ پڑھیے گا سب، کیونکہ ریزریکشن جو ہے، جی اٹھنا جو ہے، قیامت جو ہے خداوند یسوع مسیح کی، قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا. قیامت کا مطلب آخری دن نہیں جہاں پر حساب ہونا ہے سب کا. آف کورس سب جی اٹھیں گے تب ان کا حساب ہوگا. تو قیامت کا کیا مطلب ہے؟ جی اٹھنا، ریزریکشن، زندہ ہونا، وہ قیامت کا مطلب ہے. تو سب مل کر پڑھتے ہیں. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہاللویا. اگر آپ نجات آپ نے پا چکے ہیں، آپ اور آج نجات یافتہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو سیوڈ ہیں، جو ادھار پا چکے ہیں، جن کا ادھار ہو چکا ہے، نجات پا چکے ہیں. ایک بار پھر سے کہیں گے، 18ویں آیت پہ واپس جانا. مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیا؟ صلیب کا پیغام. آمین. صلیب کا پیغام جو ہے، صلیب کے پیغام کو جب ہم نہیں سنتے، جب تک اس وقت تک ہمارا ایسٹر سیلیبریٹ کرنا، ریزریکشن ڈے سیلیبریٹ کرنا بھی بیکار ہے. جب تک ہم صلیب ایک راستہ ہے جو یسوع مسیح خود ہے، جس نے اپنی جان صلیب پر دی، اس میں سے ہو کر گزرنا ہمارا ضروری ہے. تبھی ہم ریزریکشن کو، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قوت کو، قدرت کو، اس کے انوائنٹنگ کو، اس کے اس مسا کو ریسیو کر سکتے ہیں اور اس میں جی اٹھنے والی نئی زندگی گزار سکتے ہیں. ہاللویا، پریز گاڈ. اور 19ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو
रद्द करूंगा। और इसके साथ 24वीं आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत है। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। सलीब का पैगाम क्या है? वो हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि हम सब, चाहे हम जो सेव्ड हैं, चाहे वो यहूदी हैं, यूनानी, यूनानी का मतलब है हम जो गैर कौम कहलाते थे, इस वक्त भी यूनानी का मतलब वही है कि जो यूनानी है उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। जो खुदा ने जो अक्लमंद थे, उनकी अक्लमंदी और हिकमत को रद्द करके हम जो बेवकूफ थे या गैर कौम थे, वो हिकमत हमें दे दी। तो वो कौन है? मसीह यीशु जो है वो खुदा की कुदरत है, वही सलीब का पैगाम है, हालेलुया, और वही हिकमत है। प्रेज गॉड। वही खुदा कौन? ये खुदावन की जो सलीब का पैगाम, जो हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, वो खुदावन यीशु मसीह खुद है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावन यीशु मसीह खुद है। He is the wisdom and he is the power of God. Jesus is the power of God. Jesus is the wisdom of God and he is with us right now. आमीन। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां मौजूद हूं। तो उसकी कुदरत यहां पर उतरी हुई है, उसकी हिकमत यहां पर उतरी हुई है। Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. So Jesus is over here. He is in our midst and he is the power of God and he is the wisdom of God. Hallelujah. Praise God. मैं इंग्लिश में इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूं, बात तो कर रहा हूं कि कुछ हमारे बच्चे हैं जो इंग्लिश समझते हैं, जो हमारे कुछ मेहमान हैं, जो हमारे बच्चे, मुझे पता है जो हमारी कलीसिया के बच्चे, वो उर्दू हिंदी सब कुछ समझते हैं, पंजाबी सब कुछ, इंग्लिश भी। तो कुछ हमारे मेहमान हैं जो बच्चे, तो उनके लिए थोड़ा सा और हमारे साथ ऑनलाइन भी कुछ ऐसे लोग हैं इस वक्त। प्रेज गॉड। तो एनीवे मैं कोशिश करेंगे कि इसको ये लंबा ना हो। आइए पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की कुदरत है, खुदा की जो वो हिकमत है, उसके लिए वो एक खुशखबरी है जो हमारे पास है, हमारी जिंदगी में है। हम वो एक गॉस्पल है, वो एक सुसमाचार है। आमीन। वो एक गुड न्यूज है। और जो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15 बाब में, अगर उसको पहली आयत से ही हम पढ़ते हैं तो ये खुशखबरी है, ये इंजील है। इंजील का मतलब खुशखबरी है। गॉस्पल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और उसका मतलब है गुड न्यूज। आमीन। गुड न्यूज, खुशखबरी, और हिंदी में सुसमाचार उसको बोलते हैं। और यहां पर लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। आमीन। आप सब भी जिन्होंने वो खुशखबरी पाई, उस खुशखबरी को कबूल किया और उस खुशखबरी में कायम भी हैं, इसीलिए उस खुशखबरी को सेलिब्रेट करने के लिए आज उसके घर में आए हैं। हालेलुया। और कल से एक दूसरे को हम मैसेजेस भेज रहे हैं। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे, आमीन, हैप्पी ईद कयामत मसीह मुबारक हो। प्रेज गॉड। और इसी खुशी में, बिकॉज वी हैव दैट गुड न्यूज, आमीन, सो वी वांट टू just bless everybody, bless our relatives, bless our friends, bless our church with those greetings. हम वो खुशी का, मुबारकबाद का पैगाम देकर हम सब के लिए बरकत का बायस बनना चाहते हैं। आमीन। जिस पे हम कायम हैं। और फिर उसके बाद दूसरी आयत में, और उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है। उसी यानी उस खुशखबरी के वसीला से, उस यीशु मसीह की वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा होता। तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा होता।
तीसरी आयत, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। वो खुशखबरी जो पौलुस रसूल तक भी पहुंची, जो पौलुस रसूल को खुदा यीशु मसीह ने खुद वो खुशखबरी दी है, वो यही थी कि मसीह खुदावन यीशु जो है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किताब मुकद्दस के मुताबिक का मतलब क्या है? हम इसको पढ़ के फिर एक दो आयतें पर देखते हैं। हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। वो मुआ भी किताब मुकद्दस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ही डाइड, और फिर वो दफन हुआ, ही वॉज बरीड, और तीसरे दिन द थर्ड डे ही रोज अप। वो किताब मुकद्दस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ही बिकेम अलाइव। वो जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। तो पौलुस रसूल कहता है कि बहुत से लोगों को वो नजर आया है, पहले अपने शागिर्दों को नजर आया पहले, और और वहां पर जब वो औरतें जो वहां पर बाग में जहां पर खुदा यीशु मसीह की कब्र है, वो गार्डन टूम जो है इस वक्त जो खाली कब्र है, हालेलुया। दुनिया के सब कब्रों में सब मुर्दे हैं, पर खुदा यीशु मसीह की कब्र खाली है, और हमने 3-4 दफा उसमें जाकर देख लिया है, वो खाली है, हालेलुया। और वहां पर अजीजों वो जो गार्डन है, वो जो बाग है, उसमें वो कब्र है, और उस बाग में जाते ही वहां पर पावर ऑफ रेजरेक्शन है, वहां पर जी खुदा यीशु मसीह के जी उठने का मसा उस जगह पर मौजूद है। कल ही रात में CBN की मैं कुछ एक न्यूज देख रहा था, जो वो बता रहे थे कि कैसे कैसे लोगों की टेस्टमनीज हैं, जो वो वहां पर वो गए और उन्होंने कैसे कैसे शिफा पाई लोगों ने, और खास और जब वो कुछ लोग ऐसे जो मानते ही नहीं थे कि खुदा यीशु मसीह जी उठा, या खुदा यीशु मसीह का ऐसे इस किस्म का ऐसी वो है जो खबर है और कलाम है, खुशखबरी है, वो ऐसे ही वहां पर गए देखने, और वो कुछ ना कुछ उनको बीमारी थी, और वो जब वो खाली कब्र के अंदर जब वो गए, उसके अंदर टूम के अंदर, तो वो बिल्कुल वहां पर उन्होंने शिफा पाई, और वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। आमीन कि वो जिंदा है, वो वहां नहीं है, पर वो मसा, जी उठने वाला मसा वहां पर मौजूद है, हालेलुया। वो वहां पर मौजूद है, प्रेज गॉड, हालेलुया। I just want to go again and see that place. मैं वेट कर रहा हूं कब वो ये वॉर बंद हो और हालात ठीक हो जाएं, ताकि, और बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, हम फिर से जाना चाहते हैं, आमीन, और फिर से वहां पर विटनेस करना चाहते हैं, प्रेज गॉड। पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो अनदेखे को बिलीव करते हैं, हालेलुया। जो अनदेखे को बिलीव करते हैं, मुबारक हैं वो लोग जो, कोई बात नहीं भी जा सके, जो लोग नहीं जा सके या अभी तक नहीं गए, बट मुबारक है वो लोग जो अनदेखे पर ईमान लाते हैं, हालेलुया। और उनमें से आप में से बहुत से हैं ऐसे, और सारी दुनिया में बहुत से लोग, हर कोई थोड़ी जा पाता है, आमीन। और हमारे मुल्क में तो वैसे ही मना है वहां जाना, हमारे मुल्क में से तो जा भी नहीं सकते लोग, पर मुबारक है वो लोग जो अनदेखे पर ईमान रखते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, यहां पर हमने देखा है कि एक वर्ष देखते हैं कि वो किस तरीके से किताब मुकद्दस के मुताबिक वो खुदा यीशु मसीह जी उठे। पौलुस रसूल ये लिखते हैं कि खुदा, ये खुशखबरी जो है, ये गुड न्यूज जो है, वो ऐसे ही है कि वो खुदा यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठे। लूका 24 बाब और 27 आयत में खुदा यीशु मसीह ने खुद इस बात का बयान किया है। Jesus himself told that, he declared, he
he just told everybody that how he's gonna die, किस तरीके से वो उनकी मौत होगी, किस तरीके से क्या होगा सारा कुछ. तो लूका 24 बाब उसकी 27 आयत में लिखा, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी. आमीन. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा कि जितनी बातें मूसा से लेकर किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है, शैतान को शिकस्त दिया है, उसके सर को कुचला है खुदावंद यीशु मसीह ने. वो तौरात से लेके नबियों के सहीफों से लेके ज़बूरों में से और उसके बाद जितना कुछ लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ उनको समझा दिया कि ये सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है. आमीन. मेरे लिखा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मैथ्यू चैप्टर 26 और उसकी 24 वर्स में, और if you are in Luke you can go to verse 44. लूका 24 बाब और 44 वर्स उसकी. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Praise God. फिलिप्पस और पतरस के शहर बैतसैदा का hold on. Got it? Okay. 24 की 44. फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था. खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं ये सारी बातें जो हो रही हैं या होने को हैं या होंगी या हो चुकी हैं, ये सब वो बातें जब मैंने सब कुछ ही तुम्हें बता दिया था जब मैं तुम्हारे साथ था, चलता फिरता था, उठता बैठता था, तुम्हारे मैं साथ था. ये सब बातें उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो. आमीन. पूरी हो. हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पाम संडे से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें ये जो पाम संडे का सारा जो सीन है उसके बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जो तुम्हारा बादशाह है वो गधी के बच्चे पर बैठ के आता. ज़किया नबी की किताब में वो प्रोफेसी हमने पढ़ी, और उससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश की और उसके बाद की भी जो भी बातें नबियों के सहीफों में ज़बूरों में लिखी खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद ने कहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए सब बातें बता दी थी कि वो पूरी होनी है. आमीन. अगर आप ज़बूर 22 साम 22 पढ़ें तो उसमें वो सारी बातें जो कुछ सलीब के ऊपर सलीबी मंजर था और वो सब कुछ जो कुछ उस वक्त हुआ वो सारा का सारा साम 22 में लिखा हुआ है. आमीन. साम 20 जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो अजीजों वो 22वें ज़बूर का वो शुरू की आयत है. आमीन. पहली आयत ही है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और खुदावंद यीशु मसीह ने वो बात इसलिए कही कि वो सारे फकी फरीसी यहूदी जो वहां पर सलीब देने के वक्त भी वहां पर खड़े हुए थे और सबने सुना भी, उनको वो पूरा का पूरा ज़बूर याद आ जाए कि यहां वहां पर जो कुछ लिखा हुआ है हम ये इसके साथ हो रहा है. क्योंकि जैसे हम भी जो ज़बूर गाते हैं ना, आपको पता है जब हम बचपन से ज़बूर गा रहे हैं तो एक आयत कोई शुरू करता है ना तो पूरा ज़बूर हमें याद आ जाता है. तो अजीजों उस वक्त भी और आज भी यहूदी लोग ज़बूर जो हैं उनको ज़ुबानी याद है, वो हर वक्त ज़बूर पढ़ते रहते हैं. उस वक्त ज़ुबानी याद थे. तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो आया बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो पहली वर्ष शुरू की थी ताकि पूरा का पूरा मंजर 22 ज़बूर का लोगों के अंदर आ जाए, जो सुन रहे हैं, जिनको पता है कि भाई ज़बूर में क्या लिखा हुआ है, ज़ुबानी याद है लोगों को. और वो सारा का सारा मंजर जो कुछ हो रहा था वो अपने मसाया को पहचान लें. आमीन. मगर उनकी आंखें बंद थी. अजीजों आगे चलते हैं. खुदावंद यीशु मसीह
یہی باتیں ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق وہ جی اٹھے اور پھر وہ دفن ہوئے، اور کلام مقدس کے مطابق ہی وہ پھر جی اٹھے ہیں۔ ایکٹس چیپٹر 2 اور ورس 24 میں اعمال کی کتاب پریرتوں کے کام دوسرا باب، اعمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ خداوند یسوع مسیح جب ان کو دفنایا گیا ہے تو جو کچھ لکھا تھا کہ وہ اپنے جو ممسوح ہے، اپنا جو اس کا جو مقدس جس کو اس نے مسح کیا، اس کے بدن کو کبھی وہ سڑنے نہیں پائے گا۔ وہ بدن کبھی سڑنے نہیں پائے گا۔ جو بدن کفارے کے لیے خدا نے تیار کیا تھا، وہ بدن تیار، خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ ہمارے کفارے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے لیے ایک جو منجی بنا اور ہمارے لیے جو خدا کا برہ بنا، وہ ایک بدن تیار کیا گیا تھا۔ عزیزو، وہ ایک بدن تیار کیا گیا تھا کہ وہ اس کا کفارہ دے، بے عیب برہ بن کر وہ کفارہ دے سکے۔ اور پھر اسی لیے لکھا ہے کہ خدا نے موت کے بندھن کھول کر اسے جلایا، اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہ سکے، اس کے یعنی موت کے قبضے میں رہ سکے۔ ہاللویا! موت کے ممکن ہی نہیں تھا۔ It was impossible that death can hold Jesus Christ in the grave. Amen. It was impossible. Amen. It was impossible. عزیزو، وہی یسوع جو آپ کے اندر بھی رہتا ہے، وہی پاک روح جو آپ کے اندر بھی رہتا ہے، وہی زندگی کا روح جس نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرایا ہے۔ ہاللویا! That Holy Spirit, the Spirit of life who have liberated you and me from the law of sin and death. That is the Spirit of life who lives in you and me also. He will raise, and who raised Jesus Christ, جس نے یسوع کو زندہ کیا ہے، وہی آخری دن مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرے گا، کیونکہ وہ زندگی کا روح ہے۔ He is the Spirit of life. Who have no, جس کے اندر مسیح کا روح نہیں، وہ اس کا نہیں ہے۔ ہاللویا! خدا کا کلام رومیو 8 باب میں ایسا لکھا ہے۔ تو عزیزو، ضرور ہے کہ ہمارے اندر مسیح کا روح ہو۔ اگر کوئی اور روح بدرو ہمارے اندر رہتی ہے تو we need deliverance. We need deliverance. ہمیں چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ Praise God! ہمیں چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ تو ممکن نہیں تھا کہ موت اس کو ہولڈ کر سکے، اور ممکن نہیں ہے کہ اگر خداوند یسوع کا روح آپ میں ہے، مجھ میں ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ جب یسوع واپس آئے گا تو ممکن نہیں کہ موت مجھے اور آپ کو ہولڈ کر کے رکھ سکے۔ ہاللویا! کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے یسوع کے پاس ہیں۔ جس دن وہ ہوا اور وہ دفن ہوا، وہ عالم ارواح میں گیا اور ابلیس سے، جس کو اس موت پر جو ایک اختیار تھا، خداوند یسوع نے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے ہاتھ سے لے لی، اس کا برملا تماشا بنایا۔ ہاللویا! اور وہ تماشا آج تک چل رہا ہے، ہر چرچ میں چل رہا ہے وہ تماشا۔ جب خداوند کے لوگ ورشپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ہاللویا کے نعرے لگاتے ہیں، تو ابلیس کا برملا تماشا بنایا جاتا ہے۔ ہاللویا! And he flees because people resist him, praising Jesus, the resurrected one. ہاللویا! خداوند جو زندہ ہے، اس کی جب پریز ہوتی ہے تو ابلیس بھاگتا اور خوف کھاتا ہے۔ Praise God. Thank you Jesus. عزیزو، ایک دو آیتیں دیکھتے ہیں، پھر اس کو ہم بند کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور کولوسیانس چیپٹر 3، کولوسیوں 3 باب، کولوسیانس چیپٹر 3 اس کی 3rd and 4th verse we will read. کولوسیوں 3 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں
पोशीदा है। तुम मर गए, कब मरे? जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो हम गुनाह के एतबार से मर गए, क्योंकि ये जिंदों को थोड़ी कहा जा रहा है, आई मीन वो सॉरी मुर्दों को तो नहीं कहा जा रहा ना, जो बिल्कुल मर गए हुए हैं जिस्मानी तौर पर भी। ये तो हम जिंदा है ना, जिनको कहा जा रहा है कि तुम जब मर गए तो हमने जब तौबा की, when we repented and accepted Jesus Christ, we died to sin. I mean हम गुनाह के एतबार से मर गए। तो उसी वक्त से हमारी जो जिंदगी है मसीह में, मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया। मसीह कहां है? खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है। आमीन। वो खुदा है, वो दाहिनी हाथ का मतलब है अथॉरिटी। आमीन। वो वहां पे दो लोग नहीं बैठे हुए, एक ही बैठा हुआ है, पर वो उसको दाहिना हाथ इसीलिए कहा जाता है कि ही इज द अथॉरिटी, ही इज द राइट हैंड ऑफ गॉड। आमीन, प्रेज गॉड। तो मसीह में खुदा के साथ, मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, क्योंकि हमने वो मसीह के साथ किस तरीके से, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं, when we repent and we get baptized, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा का मतलब होता है क्या? हमने खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं हम। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबोया जाता है, तो उसकी हम मौत में शामिल होते हैं, उसकी दफन में शामिल होते हैं। जब पानी से बाहर आते हैं तो हम उसकी जी उठने में भी शामिल होते हैं। हालेलुया। तो हम मसीह में शामिल हैं, तो इसलिए उसके फिर हम साथ हैं जो अगली जिंदगी गुजरती है, और उसके मसीह के साथ होने के सबब से हमारी जो जिंदगी है खुदा में पोशीदा है। हालेलुया। इट इज प्रिजर्व्ड इन गॉड। और ओके, चौथी वर्ष, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब मसीह जाहिर होगा, जब आसमान पर उसका निशान नजर आएगा कि वो सफेद घोड़े पर बैठा, हालेलुया, वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहने वो आ रहा होगा, और आसमानी फौजें भी सफेद घोड़ों पर वो उसके साथ होंगी, जो मैं और आप हैं उसके साथ ही आएंगे। हालेलुया। तो क्योंकि वो जलाल में जाहिर होगा, तो मैं और आप या हमसे पहले भी जो उसमें सोए हैं वो जलाल में जाहिर होंगे। they will appear in that glory. हालेलुया। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, उसका थर्ड चैप्टर, फर्स्ट जॉन थर्ड चैप्टर, और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना, अजीजो, कौन? अजीजो, बिलवड, ये मुझे और आपको कहा जा रहा है जो उसके लोग हैं। हालेलुया। यूहन्ना उन लोगों को कह रहा है, अजीजो, हम इस वक्त, ठीक है, मौजूदा टाइम, ठीक है, सब कह सकते हैं इस वक्त, हम इस वक्त, अपनी तरफ इशारा करके हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। फर्जंद का मतलब उसके बेटे बेटियां हैं। राइट नाउ वी आर हिज चिल्ड्रन, राइट नाउ, इस वक्त हम उसके फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। अभी तक पता नहीं है हमें क्या कुछ, अभी धुंधला सा, बाइबल पढ़ के धुंधला सा हमारे को नजर आता है हम क्या कुछ होंगे, जलाल में जाहिर होंगे, कैसे होंगे, हम बदल जाएंगे, राइट, सबको धुंधला सा, हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं। हालेलुया। सब कहें, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम भी उसी की मानिंद लगेंगे, और जैसा वो है उसी की मानिंद हम नजर आएंगे। ही इज द ग्लोरियस वन। हालेलुया, ही इज द ग्लोरियस वन। वो जलाली है, और मैं और आप भी जब वो जाहिर होगा, हम उसी, क्योंकि हम बदल जाएंगे तो हम भी उसी की तरह नजर आएंगे। प्रेज गॉड, हम भी उसी की तरह नजर आएंगे। अजीजो, लूका 20 बाब और 36 आयत, Luke chapters 20 and verse 36.
verse 36, 20:36. क्योंकि वो फिर मरने का भी नहीं, क्योंकि वो फिर मरने का भी नहीं। क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे। जो खुदावंद यीशु मसीह में है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। हालेलुया। वो कभी भी मरने वाले नहीं है, वो कभी भी मरने को नहीं है, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। कयामत का मतलब क्या बताया था? जी उठना, आई मीन जिंदा होना। खुदावंद यीशु मसीह ने लाजरस को, जब मर गया था लाजरस, तो मरियम मार्था उसके पास आई। मार्था को खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, कयामत और जिंदगी मैं हूं। आई एम द लाइफ एंड रेजरेक्शन, आमीन। कयामत और जिंदगी मैं हूं। तो अजीजों, जब मैं और आप या हमसे पहले भी अगर कोई खुदावंद यीशु में मरे हैं, तो वो मरे नहीं बल्कि सोते हैं, वो कभी भी मरने वाले नहीं हैं। आमीन। क्योंकि यीशु में है वो। हालेलुया। वो यीशु में है, यीशु का रूह उनको जिंदा करेगा और वो कभी भी मरने वाले नहीं हैं। इसलिए कि वो कयामत के वो फरिश्तों के बराबर होंगे। और क्योंकि फरिश्ते रूहें हैं, रूहें कभी नहीं मरती, आमीन, बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर, यानी खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कयामत और जिंदगी मैं हूं। तो कयामत यीशु के बेटे बेटियां होते हुए होकर खुदा के भी फर्जंद हो गए। यहां पे आप देख रहे हो खुदावंद यीशु मसीह, जो कयामत है, वो जो जी उठना है, वो जो रेजरेक्शन है, वो और खुदा एक ही है। हालेलुया। वो एक ही है कि यीशु के जो बेटे खिलाएंगे वही खुदा के बेटे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। वही जिंदगी, वही कयामत, वही जी उठने के फर्जंद हैं। हालेलुया। चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन। हालेलुया। चिल्ड्रन ऑफ रेजरेक्शन। अजीजों, जब अभी कल शाम हम एक गीत यूट्यूब पे डालने के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें खुदावंद यीशु ने खुदावंद ने हमें गीत दिया कि ये कैसा जलजला आया। आई मीन, कयामत की निशानी है, मेरा मसीह जी उठा कब्र से, ये कैसी शादमानी है। हालेलुया। ये कैसी शादमानी है। तो अजीजों, कयामत, जब वो जलजला जो उस वक्त आया है जब खुदावंद, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाकर, अपनी मत्ती 27 बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाकर अपनी जान दे दी। और उस वक्त लिखा है कि एक जमीन लरजने लगी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें जो हैं वो खुल गईं। बहुत से मुर्दे जो हैं वो जिंदा हुए। और उसके बाद वहां पर लिखा है कि वो फिर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद कब्रों में से बाहर आए हैं। ऐसा लिखा वहां पर। और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे हैं, तो उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त फिर से भूचाल आया है। जब वो औरतें सुबह के वक्त, मत्ती 28 बाब में अगर पहली आयत से पढ़ें, तो सुबह के वक्त जब सब औरतें वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर आई हैं सुबह सवेरे, तो उस वक्त भी एक बड़ा भूचाल आया है, एक अर्थक्वेक आया है, जिससे क्या हुआ कि वो जो कब्र के ऊपर पत्थर था, वो फरिश्तों ने लुढ़का कर कब्र को खोल दिया और वो कब्र, उस पत्थर पर खुद फरिश्ता बैठ गया। आमीन। और उस वक्त लिखा है कि जो पहरेदार थे वो भी मुर्दा से हो गए और खुदावंद यीशु मसीह वहां से वो बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए अजीजों, जब वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, तो जो कब्रें खुली और चट्टानें तिड़की, तो वो मुर्दे वो जो थे वो जिंदा जरूर हुए,
उन पर, जैसे इज़ीकियल की किताब में पढ़ते हैं कि वो सब पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया, नसें चढ़ गई, पर उनके अंदर अभी रूह वो नहीं आई थी। हालेलुया, रूह नहीं थी। फिर रूह फूकी गई, फिर वो जीती जान हुए और उठ कर खड़े हो गए अपने पाँव पे। इसी तरीके से जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है, कब्रें खुल गई हैं और वो मुर्दे जो हैं वो ऑलमोस्ट जिंदा हो गए हैं, मगर वो उठने के लायक नहीं थे अभी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अभी जिंदा नहीं हुए थे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आलम रवा में गए हैं, क्योंकि उन मुर्दों की, वो जो जिंदा हुए उनकी भी, मुर्दों की, उनकी भी जो रूहें हैं इब्लीस की कैद में थी उस वक्त तक। आमीन। तो खुदावंद वो जिस्म तो बदल गए, वो जिस्म तो जिंदा हो गए, पर वो रूह हैं जो उनकी कैद में थी, इब्लीस की कैद में, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। वो जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने रिलीज करवाई है, जाके उनको खोला है, तो अजीजों फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही खुदावंद यीशु मसीह कब्र से पहले स्टेप आउट हुए, उसके साथ ही बाकी मुर्दे भी कब्रों में से फिर बाहर आ गए और बहुत से लोगों को नजर आए, लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए खुदावंद की हुजूरी में हम सब खड़े होते हैं, प्रेज गॉड, दुआ करते हैं। मैं